Hi students, in my previous lecture on IPC, we were on the last part of right of private defense. We've seen that the right of private defense, which accrues to us by virtue of section 96, extended to the extent of even causing death in section 100 as far as body offences are concerned, and in 4 clauses as far as property offences are concerned in section 103. The right of private defense, when does it begin? Section 102 for body offences and section 105 for property offences. In body offences, we read in section 102, moment there is an attempt or there is a threat, basically threat of a reasonable apprehension that harm is going to be caused. When we came to the beginning of my right of private defense in property offences, we came to section 105. 105 deals with each matter separately. Section 105, as I told you, is divided into 5 paras. The first para told us that my right of private defense, when does it start? Moment the apprehension of danger to property starts. So when does my right of private defense against property start? Moment there is a reasonable apprehension of danger to property. The next more important question was, till what time does it last? कब तक? उसको various aspects में cover किया गया. In my previous lecture, we saw that as far as theft is concerned, theft gave rise to certain confusion because of the terminology which is used in section 105 para 2. As far as the right of private defense against theft is concerned, there were 3 terms used. The first term was, unless he has effected his retreat with the property. Second, unless the assistance of the public authorities has been taken. And third was the most controversial part, or till the property has been recovered. Now when I say till the property has been recovered, ये तो एक बहुत ही बड़ा term हो गया. I may recover the property maybe after 5 years. इसीलिए कल हमने सारे जजमेंट्स देखे जिसमें एक चीज क्लियर की गई, जहां उन्होंने जॉन डी मेन का प्रिंसिपल लिया कि एक बार चोर ने फाइनल रिट्रीट कर ली है. So once the thief has effected what we call, what Allahabad High Court has used the word final retreat, then the only option available to me is to go to the police, to public authorities for redressal of my wrongs. We saw all those aspects in my yesterday's lecture. As far as criminal trespass or mischief is concerned, we saw till the criminal trespass or mischief continues, उसके बाद नहीं. So जब तक criminal trespass या mischief चल रहा है, तब तक. Similarly, जब हम house breaking में आए, the right of private defense against property against house breaking by night continues as long as the house trespass which began by such house breaking continues. Moment हाउस ब्रेकिंग की तरफ से जब मैंने हाउस ट्रेसपास किया, यानी कि जब मैंने हाउस ट्रेसपास उन 6 तरीकों से किया जो हाउस ब्रेकिंग की परिभाषा में आते हैं, आफ्टर दैट टिल आई एम कमिटिंग हाउस ट्रेसपास, ओनली टिल दैट पॉइंट आई हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. मोमेंट माय हाउस ट्रेसपास फिनिशेस, माय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस in house breaking by night finishes. All these aspects have to be read with, again and again I have been stressing this point, read with section 99. 2 aspects are very important. If I have time to recourse to public authorities,
I have no right of private defense. Second, under no circumstances the harm caused while exercising my right of private defense should be more than necessary in that particular condition case. उस केस में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब कितनी जरूरत है, this is a question of fact. Each case depends on different facts, hence we cannot generalize. The word is not proportional. As much as is necessary is the most important word. I hope everybody is clear on section 105. We now come to section 106. 106 is one question which comes as a proposition in mains. 106 is one, I will say, a different type of private right to private defense, where I am allowed to cause harm which can even extend to death to an innocent person. लॉ कभी भी आपको innocent person को harm करना अलाउ नहीं करता है, खासकर exercising my right of private defense. This is one of the, I will say, a completely different sections. एक अलग ही तरह का सेक्शन है ये, जहां पे मेरा right of private defense extends to the causing of even death of an innocent person. That is the reason why 106 is a very, very, very important section. First, let's understand this section, then we'll discuss. Section 106. If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death. यहां रुक जाते हैं. The first point is, मेरे खिलाफ एक assault हुआ है. That assault raises an apprehension of death. Reasonably raises an apprehension of death. तो पहला पॉइंट ये हो गया कि मेरे खिलाफ एक असॉल्ट हो चुका है जिससे मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ रहा है, और वो असॉल्ट ऐसा है which has now given rise to a reasonable apprehension कि मैं उसमें मर सकता हूं. पहला पार्ट. Now the reasonable apprehension of death है, reasonable apprehension of grievous hurt नहीं है. So there is no reasonable apprehension of less than death. So 106 has no applicability if the reasonable apprehension is anything less than death. It is neither wrongful restraint, nor rape, nor grievous hurt. Nothing less than reasonable apprehension of death. पहला पॉइंट. यही प्रोपोजिशन जब आते हैं, आपको सबसे पहले यही चीज देखनी है, रीजनेबल एप्रीहेंशन किस चीज का है. If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated. Now the defender is placed in such a situation
This is the second aspect. Firstly, there is an assault which reasonably causes apprehension of death. Second, I am trussed up in such a situation. मेरी सिचुएशन ऐसी है, यानी कि मेरे पास सिचुएशन का एक रेस्ट्रेंट है. I have a restraint of a situation. What is that? Let's see. The defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person. मैं ऐसी स्थिति में हूं कि अगर मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूं तो उसमें हो सकता है कि कोई इनोसेंट आदमी को हार्म पहुंचे. तब सेक्शन 106 मुझे वो रिस्क कि एक इनोसेंट आदमी भी हार्म हो सकता है. नाउ द वर्ड हार्म हियर इंक्लूड्स डेथ, बिकॉज द असॉल्ट इज ऑफ डेथ, an apprehension of death. It comes under section 100. As a result, I can exercise my right of private defense even to the extent of voluntarily causing death. But while voluntarily causing the death of the assailant, chances are there that an innocent person may be hurt. Illustration पढ़ते हैं. बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है. ये इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, खास ख्याल रखना है. A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob. And he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. एक मॉब ने अटैक कर दिया, एक की जान जा सकती है. ये उनको पहले वार्न करता है. ये कहता है कि मत आओ, मैं गोली चला दूंगा. वो नहीं मानते. फिर वार्न करता है, गुड फेथ में करता है. नाउ ही फायर्स इन द क्राउड. उस क्राउड में बच्चे भी हैं. और भी अच्छा होता है कि वो ये भी कहते हैं, बच्चों तुम लोग चले जाओ, गोली चल जाएगी. बच्चे बच्चे नहीं जाते, गोली चल जाती है, बच्चे को लग जाती है, बच्चा मर जाता है. हार्म्स द चाइल्ड. हार्म हेयर इंक्लूड्स इवन डेथ. नो ऑफेंस. दैट इज व्हाई आई सेड ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आएगा आपके एग्जाम्स में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा. ऐसे बहुत सारे हमारे पास रियल लाइफ केसेस हैं. जहां पे एक कॉम्युनल राइट हो रहा था और एक रिलीजन के लोगों ने दूसरे रिलीजन के एक आदमी के घर अटैक कर दिया. बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आ गए. उन्होंने घर को आग लगाने की कोशिश की. अंदर विमेन थी. क्लियर खतरा नजर आ रहा था कि सारे जल के मर जाएंगे. वो आग लगाते जा रहे थे, पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे थे. वो जो आदमी था वो ऊपर गया छत पे और उसने उनको वार्न किया कि तुम लोग चले जाओ, मैं फायरिंग करने वाला हूं. वो नहीं माने. इनफैक्ट उसके ऊपर भी एक पेट्रोल बॉम्ब फेंका जिसको लगा नहीं, आग नहीं लगी. ही फायर्ड. 7-8 राउंड फायर किए. बाद में ये पॉइंट आया कि कोई लोग ऐसे मर गए जो इनोसेंट थे. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ही वाज प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 106. तो अगर आप कोई ऐसी स्थिति में आ गए जहां पे आपको आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो भी कौन सी जगह, सिर्फ जहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो गया है, तो नेचुरली आप भी डेथ कॉज कर सकते हो. पर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करो, आपकी सिचुएशन ऐसे है कि उसमें इनोसेंट लोग मर सकते हैं. अगर मर जाते हैं, now please remember there should be no intention to kill the innocent person.
ये नहीं कि मैं उनको बोलूं तुम चले आओ नहीं तो मैं बच्चे को मार दूंगा, अब नहीं है। सो जहां मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, इनफैक्ट इंटेंशन बच्चे को बचाने की है, तो फिर मेरे को 106 का बेनिफिट मिलेगा। इसको ध्यान से रख लेना। इसके ऊपर मेरे पास इशाक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश भी है। ए वॉज अटैक्ड विद अ मॉब by a mob and intending to murder him, and he had no other option but to fire at the mob. He was acquitted. उसमें लोग मर गए, इनोसेंट भी थे। एक और है सुप्रीम कोर्ट का केस, वासन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। There was a fight between two groups. The accused himself has received 9 injuries. When assailants came with a gun to shoot him, to save himself, he shot at them. However, he hit an innocent woman bystander, killing her. Supreme Court held that the accused had a right of private defense to even have the risk of killing an innocent woman by section 106. So this finishes our entire topic of right of private defense. हमने काफी दिन बिताए, but I hope now everybody is a master of the entire law of private defense. अभी तक हम जनरल चीजों पे चल रहे थे। पहले हमने देखा जनरल प्रिंसिपल्स, सेक्शन 34, सेक्शन 120 बी ए, पूरा लॉ ऑफ अबेटमेंट। उसके बाद हम आए जनरल एक्सेप्शंस पे। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑफेंसेस पर से। आईपीसी में अगर मैं बोलूं तो पूरी आईपीसी को हम 3 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस में डाल सकते हैं। रादर मैं ये कहूंगा 3.5 या 4 ही कहते हैं। पहली कैटेगरी में लेता हूं ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट की जब मैं बात करता हूं तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पर से, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया वगैरह, सेक्शन 121। उसके बाद स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, सो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एंड ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट, ये पूरा एक हम उसको एक पार्ट मानेंगे। उसके बाद स्टेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पब्लिक। तो पब्लिक जस्टिस सिस्टम के खिलाफ ऑफेंसेस, तो कायदे से ये पहला पार्ट आ जाता है स्टेट का। तो इसमें स्टेट पर से, स्टेट के खिलाफ, एग्जैक्ट स्टेट, फिर स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स ने यहां खिलाफ, और फिर पब्लिक जस्टिस सिस्टम, पब्लिक न्यूसेंस वगैरह, वो सब आ जाते हैं। इसको मैं पहला पार्ट मानता हूं आईपीसी का। दूसरा पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी ऑफेंसेस, जो सेक्शन 299 से शुरू होते हैं और सेक्शन 377 तक जाते हैं। तीसरा पार्ट है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो हैं कायदे से 378 से शुरू हो जाते हैं एंड राइट टिल 490 तक जाते हैं। 495, 496 के पास आके छोटा सा एक पार्ट आता है ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन, 498A। 498 तक तो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस चलते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। चौथा पार्ट है हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट द माइंड, डिफेमेशन। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द माइंड में रेपुटेशन, इंसल्ट,
क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सब आ जाते हैं, जिसको मैं कहूंगा साइकोलॉजिकल। मोटा मोटा ये हमारे ऑफेंसेस हैं। तो अगर हम ऑफेंसेस की बात करें, जैसा कि मैंने बोला, मैंने इनको 4 भागों में बांट दिया। स्टेट के ऑफेंसेस में एंड में आऊंगा। पहले हम शुरू करते हैं बॉडी ऑफेंसेस से। बॉडी ऑफेंसेस का हाईएस्ट बॉडी ऑफेंस क्या हो सकता है? कॉजिंग डेथ। कॉजिंग डेथ, होमिसाइड। तो होमिसाइड हाईएस्ट बॉडी ऑफेंस होता है। सबसे छोटा ऑफेंस जहां बॉडी टच नहीं हुई, असॉल्ट। तो क्रिमिनल असॉल्ट और एक रेंज है मेरी होमिसाइड। ये पूरा मेरा रेंज है बॉडी ऑफेंसेस की। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की अगर मैं बात करूंगा, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के 3 मेंजरिया हैं। कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस, कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, जो दोनों मिला के बनते हैं डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफेंसेस आर गवर्न्ड बाय द मेंजरिया ऑफ डिसऑनेस्टली। और 415 के आगे चीटिंग, फोर्जरी, fraudulently also makes its entry into IPC. जो माइंड के खिलाफ ऑफेंसेस हैं, वो कायदे से एक्सेप्शंस हैं। वो जो हैं, पर कहीं ना कहीं वो मेरे पे बहुत बड़ा असर छोड़ते हैं। कायदे से माइंड के ऑफेंसेस रॉन्ग्स होते हैं, चाहे वो डिफेमेशन है, चाहे वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है या इंसल्ट है। इसलिए हमने उसको बिल्कुल एंड पार्ट में आईपीसी में रखा है। जैसे हम रेजिड्यू के पार्ट बाद में लाते हैं, रेजिड्यू का पार्ट हम बाद में लाते हैं। आखिरी सेक्शन हमारा अटेम्प्ट है 511। जहां तक हमारे स्टेट ऑफेंसेस का सवाल है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट का सवाल है, मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। Whoever wages a war against India, इतने सीरियस ऑफेंस होते हैं क्योंकि अगर स्टेट नहीं है तो हम नहीं है। अलग अलग तरह से डील किया गया है चारों भागों को। हम पहले शुरू कर रहे हैं बॉडी ऑफेंसेस, एंड IPC starts with the highest body offense and goes on to the lowest body offense. तो कायदे से देखो ऐसे जा रहा है। सबसे ऊपर culpable homicide, culpable homicide which may amount to murder, grievous hurt, wrongful restraint, wrongful confinement, kidnapping, abduction, criminal force, assault, rape, what we will call end में आता है sexual offenses, 376, 377। एक पैटर्न है आईपीसी का। जब वो पैटर्न समझ जाते हैं तो बहुत सिंपल है आईपीसी नॉट डिफिकल्ट। आईपीसी शुरुआत होती है जनरल प्रिंसिपल से, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, पनिशमेंट्स, एक्सेप्शंस, अबेटमेंट। प्रिंसिपल्स में क्या क्या आ गए? 34, 120BA,
अबेटमेंट। कॉमन ऑब्जेक्ट बेसिकली एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है। अनलॉफुल असेंबली जो 141 से आता है 149 में जाता है। प्रिंसिपल्स कायदे से सेक्शन 120 बी पे खत्म हो जाते हैं। पहले 120 सेक्शंस क्या क्या हैं? सारी डेफिनेशंस, सारे प्रिंसिपल्स, सारी पनिशमेंट्स, सारे जनरल एक्सेप्शंस, अबेटमेंट। 121 से आईपीसी शुरू होती है। आईपीसी के डेफिनेट ऑफेंसेस शुरू होते हैं, प्रिंसिपल बंद हो जाते हैं, स्पेसिफिक ऑफेंसेस शुरू हो जाते हैं। स्पेसिफिक ऑफेंसेस को हम अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, offenses against and by and for against the persons representing the state, offenses by persons who are constituting a part of the state यानी public justice system। वहां खत्म होते ही सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है बॉडी ऑफेंसेस। बॉडी ऑफेंसेस खत्म होते ही प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस खत्म होते ही जो रेजिडुअल है, जो मोस्टली माइंड से कनेक्टेड है, साइकी से कनेक्टेड है, वो आखिरी हमारे रेजिडुअल सेक्शन शुरू हो जाते हैं 499 से लेकर 510 तक। और ये 511 जो है आखिरी सेक्शन है जो हमारा अटेम्प्ट का है। विद ऑल दिस बैकग्राउंड इन आवर माइंड, वी नाउ गो टू सेक्शन 299, culpable homicide। What is homicide? Homicide basically comes from 2 words, homo and side. We are all species called homo sapiens। तो एक होमो सेपियन जब दूसरे को मारता है, साइड मीन्स किलिंग, सो किलिंग ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन, होमिसाइड। तो होमी बेसिकली मीन्स जीनस है, इंसान, साइड किलिंग। सो होमिसाइड, रसल, if I define, Russell is one of the most important criminal law के exponents। रसल की डेफिनेशन और रसल की डिक्शनरी और रसल की पूरी जो किताबें हैं वो सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कोट करता है। इवन आई हैव गॉन थ्रू, देयर आर सम वेरी बिग नेम्स जो क्लियर करते हैं। मैंने अपनी क्लैरिटी कहां से ली आईपीसी की? फर्स्टली आई वेंट थ्रू द ड्राफ्ट आईपीसी। I was lucky enough to get hold of draft IPC somewhere. I could not bring it, but then I had the chance to go through it and make my notes. Then I had notes on IPC by Macaulay. One of my students had gone to London and I had specially requested him to get me that. He brought it for me. That has given me a lot of insight into IPC. Otherwise, there are many other people who are writing very well. In the modern days, we have, as far as dictionary is concerned, terminology is concerned, Black's Law Dictionary. I've also gone through the volumes written by Russell and my all-time favorite, Glanville Williams, who has given me a lot of insight into exactly what is IPC, or rather what is criminal law. I've also gone through a lot of books on IPC written by various authors. KD God is very good when you go section wise. If you want to go to concepts, then Pillai is very good. These are the 2 books, and of course section wise Ratanlal Dheerajlal is also one of the best. Beyond these I would not give any comments.
We have reached a level in IPC where we interpret law ourselves. Many interpretations have not been given in many books. I hope all my students are benefiting from the interpretations we have made over a period of years. When we come to homicide, Russell defines homicide as killing of a human being by another human being. So, killing of a human being by another human being, homicide. But the word is not homicide. The word is culpable homicide. Culpable means that homicide for which I can be held liable for. That homicide जिसके लिए मुझे पनिश किया जा सकता है. So एक homicide culpable कब होती है? Punishable कब होती है? Section 299. Homicides can be broadly divided into two parts. Killing of a man by another man can be divided into two major parts. Lawful homicide and unlawful or culpable homicide. When I come to lawful homicide, lawful homicide can further be divided into two parts: excusable homicide and justifiable homicide. Excusable homicides we have read already in general exceptions. Death caused in an accident. Death caused by a child below 7 years. Death caused by a person under Section 84, a person of unsound mind who is unable to understand the nature and consequences of his act. Death caused by an intoxicated person under 85, provided he was involuntarily intoxicated and the intoxication level was of such an extent that he was unable to understand the nature and consequences of his act. Death caused unintentionally for my benefit. Section 88, 89, 92, 93. All those are excusable. As far as justifiable homicides are concerned, a death caused by a person bound by law. A soldier fires at the mob under the commands of his superior officer in conformity with the commands of law. Section 76, illustration A. Necessity. 81. A person following the orders of a judge, a hangman, killing a person, फांसी दे रहा है, justified. All deaths caused in my exercise of the right of Section 100. Voluntarily causing death under Section 100. Section 103. Section 106. One difference here is that in Section 106, which we just discussed, the word voluntary is missing. I don't have an intention to kill, but I do have knowledge that there may be the death of an innocent person. That is why the word voluntarily causing death, which was there in 100 and 103, was not there in Section 106. All these are excusable or justifiable homicides. These
homicides are not culpable. These homicides are not punishable. If those conditions which are laid down in general exceptions are clarified and they are now proved in the court of law, I am not liable. Question arises, when am I liable? When am I liable for homicide? Homicide can further be divided now, culpable homicide, or rather I will use the word homicide for which I am punishable. The head of this is culpable homicide. Culpable homicide, that means a homicide for which I am liable. Any liability will arise if I do the act with these particulars given in section 299. Culpable homicide can be divided into two parts. An ordinary culpable homicide or a blacker. A culpable homicide which will now become murder. Culpable homicide is a genus. I'll come to this little later. Let me first finish. कि होमिसाइड कितनी तरह का हो सकता है? वो होमिसाइड जिसके लिए मैं पनिश किया जा सकता हूं कितनी तरह का हो सकता है? पहला, कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर का रूप ले चुका है, सेक्शन 300. कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर का रूप नहीं लिया पर कल्पेबल होमिसाइड है, सेक्शन 299. Causing death by negligence. Causing death by negligence, section 304A. जब मैं causing death by negligence में आता हूं 304A में, homicide word यूज नहीं हुआ, causing death word यूज हुआ है. खास लिखा गया है वहां कि वो कल्पेबल होमिसाइड ना हो, तब फर्क क्या है ये हमें देखना पड़ेगा. तीसरा, जहां मैं लायबल हो सकता हूं किसी की डेथ करने के लिए, मैंने किसी को अबेटमेंट, सुसाइड का अबेटमेंट कर दिया. सुसाइड का अबेटमेंट भी दो तरह का, एक वो आदमी जो अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, और एक वो जिसकी सोचने समझने की शक्ति है. 305 और 306. उसके बाद डाउरी डेथ, 304B. उसके बाद इनके अटेम्प्ट्स. ये सारे कॉजिंग ऑफ डेथ पनिशेबल हैं. So the question arises, when is are all causings of death of a human being by another human being punishable? No. All homicides are not punishable. Excusable and justifiable homicides are not punishable. Only those homicides are punishable which now come under the title of culpable homicide. You know, when I talk about culpable homicide,
सपोज आई एम नॉट कवर्ड बाय द जनरल एक्सेप्शन, ना एक्सक्यूजेबल है ना जस्टिफिएबल है, बट देन मैंने जानबूझ के मारा. Please remember one thing, whoever voluntarily causes death नहीं लिखा है. 299 का पहले 3 वर्ड्स हैं whoever causes death by doing an act. Whoever voluntarily causes death by doing an act नहीं लिखा है. क्यों? मैं कॉले अपना ही लॉ भूल गया? नो. अगर मैं रीजन टू बिलीव ऐड कर देता, हर एक्ट मेरा जो 304A में जा रहा है वो रीजन टू बिलीव में आ जाता. बहुत थिन लाइन रह जाती रीजन टू बिलीव में और नेग्लिजेंस में. बहुत सारे लोग जो नेग्लिजेंटली कोई एक्ट कर रहे थे वो रीजन टू बिलीव में आ जाते अगर वॉलंटरली वर्ड यूज होता. इसीलिए हम वॉलंटरली वर्ड यूज नहीं करेंगे. इतना ही नहीं, मेरा अभी का लेक्चर इस पॉइंट को डील कर रहा है कि वॉलंटरली वर्ड यूज क्यों नहीं किया, whoever voluntarily causes death क्यों नहीं किया. पहला रीजन है कि हम रीजन टू बिलीव इसमें नहीं लाना चाहते थे. क्यों? इसमें हम डेथ पेनल्टी देने वाले हैं आपको. तो बचा क्या? वॉलंटरी सेक्शन 39 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव. इंटेंशन इज अ डिजायर. Knowledge is foreseeability of consequences. Reason to believe तो है ही नहीं है. Now, जहां मैं एक्ट कर रहा हूं with foreseeability of consequences कि ऐसा होगा, बट मेरी डिजायर नहीं है. लेट्स टेक द केस जो मैंने पहले भी शायद लिया, मैं भूल जाता हूं, ऑफलाइन लिया था कि यहां लिया. एक फादर है, एडवोकेट है, उसका लड़का भी एडवोकेट है. एक ही लड़का है, बड़ी मुश्किल से हुआ था. वो बड़े पूजा करके सब जगह, वो अकबर की तरह वो गए थे, जैसे अकबर गए थे वहां अजमेर शरीफ, वैसे उन्होंने भी बड़ी मन्नतें मान के लड़का हुआ. आपस में बहस होगी जैसे वकीलों में होती रहती है. और वो लड़का यंग है, उसने कहा, हे डैड, यू हैव बिकम आउटडेटेड, आपका खत्म हो गया टाइम. फादर को बुरा लगा, गुस्से वाला था, कहासुनी बढ़ गई. और उसने जो यहां पे टेबल पे बहुत सारी चीजें पड़ी थी, उसने एक पेपर नाइफ उठाया. उसने पेपर नाइफ क्यों उठाया? डस्टर भी तो मार सकता था, मुक्का भी तो मार सकता था, पेपर वेट पड़ा था वो भी मार सकता था. नाइफ क्यों उठाया? क्योंकि उसको पता था नाइफ से ये चोट लग सकती है. अब वो नाइफ उसने कहां घुसाया? उसने नाइफ मार दिया अपने लड़के को. वो पेपर नाइफ उसने कहां मारा? सीधा हार्ट में मारा, सोच समझ के हार्ट में मारा. वो कहेगा मेरी डिजायर नहीं थी. सर, डिजायर तो नजर आ रही है. बट जहां मैंने नाइफ मारा, एक बार मारा, हार्ट में नहीं मारा, सामने ऐसे ही मार दिया, एब्डोमेन में लग गया, लड़का मर गया.
जैसे ही नाइफ मारा, फादर पागल हो गया, मैंने क्या कर दिया। पीजीआई को फोन कर, सबको फोन कर, जल्दी करो, मेरा खून ले लो, मेरा मैच करता है, सारा खून निकाल लो, इसको बचा लो। डिजायर नहीं है, फोर्सिएबिलिटी है, तभी तो नाइफ उठाया, बट डिजायर नहीं थी। यानी कि अब मैं माइंड की परतों को डिवाइड करता जा रहा हूं, डाइसेक्ट करता जा रहा हूं। सेक्शन 299 ब्रिलियंट पीस ऑफ साइकोलॉजिकल वर्क है, परतें खोल देता है, डिवाइड कर देता है। एज अ रिजल्ट जो मेरी फोर्सिएबिलिटी थी और उसमें डिजायर नहीं थी, उसको मैं लास्ट लेवल पे ले गया। So where there was no desire to achieve these consequences, ये कम लेवल है, इसका प्रसाद भी कम मिलेगा, इसकी सजा भी कम मिलेगी, क्योंकि डिजायर नहीं थी। डिजायर भी अब 2 पार्ट्स में अब आगे जा रही है। There are 2 parts of desire: intense desire and not so intense desire. Intense desire, मैंने वो चाकू उसको 50 बार मारा, 100 बार मारा, जब तक मर नहीं गया, और फिर मैंने पैर से मार के देखा, अब नहीं हिल रहा, मर गया है, यस अब मरा है। इंटेंस डिजायर। दूसरा, गुस्से में मैंने मार तो दिया, पता भी था, एक बार मार दिया फिर छोड़ दिया। कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा है कि मर ना जाए। डिजायर है, उतनी डिजायर नहीं है जितनी 70 बार चाकू मार रहा हूं, एक बार ही मारा। ऐसे केसेस में जहां बहुत ज्यादा डिजायर है और जहां कम डिजायर है, इंटेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो इंटेंशन जहां डिजायर इंटेंस है, और वो इंटेंशन जहां उतनी इंटेंस नहीं है, पर डिजायर है, पर उतनी नहीं है। और तीसरे में डिजायर नहीं है, there is no desire to kill, there is no desire to achieve the consequences which I can foresee. कल्पेबल होमिसाइड के 3 क्लॉजेस हैं। नाम क्लॉजेस ए बी सी डी नहीं दिए हुए हैं, पर सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में लिखा है क्लॉज ए क्लॉज बी। क्लॉजेस नहीं है, वो पैराज हैं, उन पैरा को हम क्लॉज मानते हैं। तो बहुत जगह आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ोगे, इन क्लॉज बी देयर इज नो क्लॉज पर से, बट देन इट इज डीम्ड एज क्लॉज। Whoever causes death by doing an act, A with an intense desire to kill, B with a desire to kill but not with an intense desire to kill, and C with no desire to kill but with foreseeability of consequences. Though intention, एक knowledge is said to cause culpable homicide. जो highest level है, उसको मैं क्या बोलूंगा? Culpable homicide of the first degree. जो कम डिजायर वाली है उसको क्या बोलूंगा? Culpable homicide of the second degree. जहां डिजायर है ही नहीं, उसको क्या बोलूंगा? Culpable homicide of the third degree. जितनी ज्यादा मेरी डिजायर, उतनी ज्यादा पनिशमेंट। जहां मेरी इंटेंस डिजायर है, उसको मैं कहूंगा काला, ब्लैक। उसकी पनिशमेंट भी काली है, फांसी है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है।
सो जहां मेरी इंटेंस डिजायर है वहां पे सजा, जो जिसको मैं कहता हूं कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द फर्स्ट डिग्री, उसकी सजा क्या है? 302, आइदर डेथ और लाइफ, बस एंड फाइन। जहां मेरी डिजायर कम है, मैं चाहता तो और मार देता, बिल्कुल मौके पे मर जाता, ऐसे केसेस कल्पेबल ऑफ होमिसाइड ऑफ द सेकेंड डिग्री, ये जाएगा थोड़े कम सजा में, 304 पार्ट 1। अब डेथ पेनल्टी हट गई, अब रह गया लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स। जहां नॉलेज है, बस सिर्फ डिजायर बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो डिजायर, वहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट खत्म, एक एक करके खत्म। ऊपर वाले में डेथ और लाइफ थी, दूसरे में डेथ खत्म हो गई, लाइफ या 10 साल रहेगी, या सिर्फ अप टू 10 इयर्स और फाइन, और फाइन। एक बात याद रखनी है, अगर आप सेक्शन 100, 103 या 106 में किसी की डेथ नहीं कर रहे, या जहां एक्सक्यूजेबल या जस्टिफिएबल नहीं है, IPC does not allow you to kill anybody. मैंने आपको पहले भी बताया था, यूथेनेसिया इज नॉट अलाउड, सेक्शन 88 ने बिल्कुल मना किया। When I come to section 309, हम यूथेनेसिया वहां बात करेंगे। That means I am not allowed to cause death of anybody under any circumstance, even under compulsion, section 94. Good intention has no place. जहां मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था, एक न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए जा रहा था और रास्ते में गाड़ी को आग लग गई, हस्बैंड बाहर निकल आया, वाइफ बाहर निकल नहीं पा रही है, उसमें फंस जाती है, पेट्रोल उसके ऊपर गिर रहा है, उसको आग लग रही है, हस्बैंड उसको गोली मार देता है आउट ऑफ गुड इंटेंशन। नाउ देयर वाज नो डिजायर। ये सारी चीजें अब यहां आती हैं। एक केस जो आया हुआ है वो उसी का एक वुमन वाज गिविंग बर्थ टू गर्ल चाइल्ड ऑलवेज, 3-4 बच्चे उसकी बच्चियां हो गई थी। हस्बैंड ने कहा अब अगर बच्ची हुई, फिर प्रेग्नेंट थी वो, उसने कहा अब अगर बच्ची होगी तो मैं उसको काट दूंगा। उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसने शराब पीनी शुरू कर दी कि अगर लड़की, उसने तलवार भी तेज कर दी, अनफॉर्चुनेटली बच्ची होगी। वो मां उस हालत में बच्ची को लेके भागी, पहली वीक थी बेचारी, हस्बैंड उसके पीछे तलवार लेके भाग रहा है कि बच्ची को मुझे दे, मैं इसको मार दूंगा। मां है वो, बच्ची को बचाने के लिए वो कुएं में छलांग मार देती है। Was there a desire to kill? No. What was the desire? To save her. But then any reasonably intelligent human being will know कि कुएं में छलांग मारने से नई बच्ची पैदा हुई है, वो मर सकती है। वो मर गई। अब ऐसे केस को there is no desire at all, but there was foreseeability. पनिश तो करना पड़ेगा। कहां आएगी? थर्ड वाले में। उसकी पनिशमेंट क्या है? 10 साल और फाइन, एंड नहीं है, और फाइन। 1 रुपया का फाइन देके कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। वो 1 रुपया भी नहीं था उसके पास, जज ने अपनी जेब से दिया था। तीनों में whoever causes death है। आप देखो ये खेल है 299 का। In all the 3,
whoever causes death by doing an act. एक में फांसी है, एक में 1 रुपया फाइन है. सारा खेल किस चीज का है? माइंड का. आपके असेलेंट के माइंड का. क्या चाहता था? डिजायर थी तो कितनी थी? क्या डिजायर नहीं थी? So that means blacker your intention, blacker is the punishment. So I will divide culpable homicide into 3 colors. Black, intense desire to kill. Dark gray, lesser desire to kill. Light gray, no desire to kill, but foreseeability of circumstance, of consequences. White क्या होगा? Excusable, justifiable. ये कलर्स हैं. और ये कलर्स कहां से निकल रहे हैं? वही कलर मेरे माइंड में है. जैसे मेरे माइंड के कलर वैसे पनिशमेंट का कलर. जहां पे डिजायर इतनी इंटेंस है कि वैशीपना आ गया, he has become an animal. वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में चले जाएंगे. डेथ पेनल्टी ही मिलेगी. दो डेथ पेनल्टीज अगेंस्ट all the present norms of developed societies. Death penalty in most of the developed societies is a thing of yesterday. So please remember, mind की परतें हैं. 299 is nothing but a dissection of the mind. 299 is nothing but the entire balance of desire and punishment. Desire, intense, or rather intense desire, desire and no desire. इसको हम कहते हैं culpable homicide. हम कैसे देखेंगे कि डिजायर है? माई एक्ट्स कैसे मरा वो बिट्रे करता है. 70 बार चाकू उसके हार्ट में, माइंड, उसके सर पे वगैरह. क्या बिट्रे करता है? गुस्सा, रिवेंज, इंटेंस डिजायर. एक ही चाकू मारा. सबसे ज्यादा केसेस मर्डर पे क्यों होते हैं? मतलब मर्डर के इतने सुप्रीम कोर्ट के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि हर केस अलग है. मर्डर एक, रादर कल्पेबल होमिसाइड एक ऐसी चीज है जो 2 केसेस अब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं किए जा सकते. छोटी सी चीज फर्क डाल देगी. एग्जाम्पल लेते हैं. ए और बी की लड़ाई हो गई. रॉड पड़ी थी, लोहे की लाठी पड़ी थी. ए ने लाठी उठाई, बी के सिर पे एक बार मारी. एक बार मारते ही इतनी जोर की मारी कि बी मौके पे मर गया. कल को वो कहेगा, सर मैंने तो रॉड नहीं उठाई, मैंने तो लाठी मारी. पर लाठी मैंने कितनी फोर्स से मारी, इस फोर्स से क्या नजर आ रहा है? मेरी इंटेंस डिजायर है ये मर जाए. बट मैंने रॉड नहीं उठाई, लाठी उठाई.
एक बार सिर्फ सिर पे मारा, पर इतनी जोर की नहीं मारा कि मौके पे मर जाए, उसका एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। नाउ इट इज डिफरेंट। एक ही एक्ट है, एक ही लाठी है, एक ही वार है। इंटेंसिटी वार की क्या है? दूसरा, बी की उम्र क्या है? बी 80 साल का बुजुर्ग है, बी 20 साल का लड़का है। फर्क आ गया। अगर कहीं इंटेंसिटी नापी जा सकती, वही इंटेंसिटी से मैं एक बी 80 साल को मार रहा हूं और वही इंटेंसिटी से मैं बी 20 साल के लड़के को मार रहा हूं, फर्क है। तभी मैंने कहा हर केस फर्क हो जाता है। These are the complexities of section 299. I've run out of time. ये लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिसको 299 और 300 आ गया, उसको आईपीसी आ गई। We'll take it up from here. Thank you. God bless.